Hello students, Standard 10, Subject Social Science, Chapter number 17, Economic Problems and Challenges in that Poverty and Unemployment. Session 2. Topic of the session, Reason or Causes for Poverty in India. Reasons and causes of poverty in India. Today, in this particular session, we will discuss about what are the causes for poverty in India. कि कौन से ऐसे कारण है, कौन से ऐसे reasons है जिनकी वजह से इंडिया में आज इतनी poverty है. Okay, the question can be asked in exam under the category of 3 to 4 mark question. Decrease in income from agriculture sector because of insufficient development in the field of agriculture and insufficient irrigation facilities. As per the data of 2011 census, yet 60% population of the country is living in rural areas. And those people who are living in rural areas are majorly dependent on agriculture to earn their livelihood. अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, कमाने के लिए गांव में रहने वाले ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पर ही डिपेंडेंट है. सेकेंड थिंग, इन इंडिया 80% of the agriculturable land gets water from the rain. That means during monsoon only it is majorly possible to conduct the agricultural activity. As the development in the agriculture sector was not as expected, कि जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसके लिए कई हद तक गवर्नमेंट जिम्मेदार है. क्योंकि उन्होंने 5 ईयर प्लानिंग के जो मेथड्स है, उस 5 ईयर प्लानिंग में सेकेंड 5 ईयर प्लान के बाद से ज़्यादातर कंसंट्रेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे ही किया और इस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ. और जैसे मैंने अभी आपको बताया दैट मेजॉरिटी लैंड ऑफ इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून फॉर वाटर. That shows that there is a lack of sufficient irrigation facilities in the country. कि मानसून के अलावा की जो दूसरे सीजन्स है उस टाइम में फार्म में कैनाल, रिवर्स, वेल, ट्यूबवेल, स्ट्रीम्स, यहाँ से वाटर सप्लाई करने के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर डेवलप नहीं हुए. एंड दैट्स वाई फार्मर इज़ अनेबल टू टेक मोर देन वन क्रॉप, है ना, and they are facing the problem of poverty. Lack of alternative employment apart from farming. Second thing, those people who are living in a rural area, as they are lacking in education or you can say they are illiterate, they don't have other skills and ability to work in any other field than agriculture. और ये भी है कि वहाँ पे रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के अलावा दूसरे जॉब्स और ऑक्यूपेशन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है. एंड दैट इज़ द रीज़न दैट द पीपल आर मोर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी देन द रिक्वायरमेंट. Lack of knowledge regarding other employment, education, skill or training in the rural areas.
एज आई टोल्ड है ना कि द पीपल लिविंग इन अ रूरल एरिया इज नॉट हैविंग रिक्वायर्ड एजुकेशनल स्किल एज पर द मॉडर्न मार्केट डिमांड। आज के समय में जैसी एजुकेशनल स्किल, एबिलिटी, क्वालिफिकेशन चाहिए वो गांव के लोगों में अभी भी कम पाया जाता है। बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट हैविंग अपॉर्चुनिटी टू गेट इंडल्ज इन एनी अदर एक्टिविटी देन एग्रीकल्चर। इस वजह से एग्रीकल्चर को छोड़कर वो दूसरे किसी जॉब या काम में इन्वॉल्व नहीं हो पाते एंड दे रिमेन पुअर। Increase in debt as a result of excessive expenditure because of caste system, orthodoxy, traditions and customs. Thus, it may be said that it is due to increase in unproductive expenditure. India is a cultural nation, but few systems, traditions, cultural patterns to celebrate the festivals, ceremonies, occasions are also unproductive in expenditure point of view. इंडिया में आज भी इफ़ यू टेक अ एग्जाम्पल कि शादी है ना, इन अ मैरिज ओकेजन पीपल स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वेदर दे आर कैपेबल और नॉट। क्यों? क्योंकि शादी में खर्चा करना ही पड़ता है। सिंपल शादी कर देंगे तो सोसाइटी में, समाज में लोग हमारे बारे में बातें करेंगे, लोग क्या कहेंगे, है ना। एंड बिकॉज ऑफ दैट इवन दो many people are not having the proper financial condition, they take the loan from the other people and spend money in such cultural and family occasions. मर जाने के बाद जो क्रिया होती है उसमें हज़ारों लाखों का खर्चा, शादियों में हज़ारों लाखों का खर्चा, दूसरे जो सेलिब्रेशंस वगैरह आते हैं उनमें एक दूसरे को देखकर, है ना, in order to prove ourselves better we spend huge amount of money. देखा देखी में बहुत बड़े पैमाने पे खर्चा होता है in some caste, है ना, especially in few lower caste of the society, yet there is a tradition of dowry. आज भी बहुत से समाज में, बहुत से कास्ट में दहेज प्रथा शुरू है। उसकी वजह से भी पेरेंट्स पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ते रहता है एंड they keep on spending such unproductive money behind different occasions and activities. और उस वजह से इनकम कम है, ये सब चीज़ों में खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। एट द एंड द पर्सन गेट्स क्लस्ड इनटू फाइनेंशियल डेब्ट। पर्सन धीरे 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 कर्जे के बोझ में दबते रहता है। Due to illiteracy, the poor become victim of exploitation and injustice. Along with that, they are not able to get a proper benefit of government schemes because of lack of information. As the people who are living in a poverty are illiterate, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, they are not aware about the modern government schemes for their benefit. गवर्नमेंट ने इन गरीब लोगों की भलाई के लिए जो स्कीम्स बनाई है उनके बारे में भी उन्हें नहीं पता होता। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल, है ना, एक्सप्लॉइट सच पुअर पीपल बाय टेकिंग मोर वर्क फ्रॉम देम, पेइंग लेस सैलरी, और दे टेक द गवर्नमेंट स्कीम ऑन नेम ऑफ दिस पुअर्स एंड डोंट प्रोवाइड एक्चुअल बेनिफिट टू द पीपल एंड दे टेक्स द एडवांटेजेस, है ना, बाय देमसेल्व्स। बीच में खुद ही फ़ायदा ले लेते हैं। गरीब लोगों तक जो गवर्नमेंट का स्कीम है फूड से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, हाउस डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो स्कीम्स उन तक नहीं पहुंच पाती। ड्यू टू इग्नोरिंग नेसेसिटीज़ एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, दैट वाई द पॉवर्टी इज़ हाई। क्यों आज़ादी के आज 73 साल बाद भी, आफ्टर 73 years ऑफ इंडिपेंडेंस, येट वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, है ना। मोर देन 25 करोड़ पीपल आर येट लिविंग इन पॉवर्टी। क्यों ये हाल है?
क्योंकि गवर्नमेंट ने रेगुलर बेसिस पे जो 5 ईयर प्लानिंग मेथड हो रही है उसमें पुअर सेक्शन और लोअर इनकम अर्नर्स के लिए प्रॉपर इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज़ नहीं डेवलप की है। देर आर सो मेनी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पुअर। गवर्नमेंट ने प्लानिंग किया है, पॉलिसीज़ बनाई है, बट दे ऑल आर ऑन पेपर्स, पर वो सिर्फ पेपर पे ही है। रियल इम्प्लीमेंटेशन उसका ऑनेस्टली और सिंसियरली कभी हुआ ही नहीं है। Production of cash crops was encouraged while the production of edible crops were reduced. This triggered the scarcity of food grains and pulses and price rise, because of which people could not get meals twice a day. Due to the commercialization of agriculture sector, in order to get the maximum financial benefits, farmers started growing and cultivating cash crops like cotton, jute, sugarcane, tea, coffee, rubber, and various pulses which they can sell in a market, spices. इन सभी चीज़ों की वजह से जो रेगुलर फूड ग्रेन्स थे, वीट, राइस, है ना, वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, ज्वार, बाजरा, इन सभी का प्रोडक्शन डे बाय डे कम हो रहा है एंड दैट इज़ क्रिएटिंग द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज इन द मार्केट। कि मार्केट में ये जो फूड ग्रेन्स और मेन पल्सेस है इनका इनफ सप्लाई नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर फार्मर कैश क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं लाइक कॉटन, शुगर कैन, ग्राउंड नट, है ना, सनफ्लावर, सोया एट्सेट्रा। और जब फूड ग्रेन्स मार्केट में प्रॉपरली नहीं पहुंच पाते, सप्लाई अकॉर्डिंग टू डिमांड नहीं हो पाती, देयर प्राइस राइजेस। और जब महंगाई की वजह से उन चीज़ों के भाव, है ना, या दाम बढ़ते हैं तो गरीब आदमी उसे ढंग से खरीद नहीं पाता और अपनी 2 वक्त की रोटी भी वो जुटा नहीं पाता एंड दे सफर्स अ लॉट। Because of execution of economic reforms means that what we studied in chapter number 16, liberalization, privatization and globalization, that is the economic reforms. Rural economy collapsed, cottage and small scale industry broken down, migration increased, income from in agriculture sector decreased. इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो हमने अडॉप्ट किया उसके थ्रू प्राइवेट कंपनीज़ को इनकरेजमेंट मिला, फॉरेन कंपनी को इंडिया के मार्केट्स में आने की परमिशन मिली। इन सभी की वजह से इंडिया में जो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन थे, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस चल रहे थे, वो सभी डैमेज हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी थोड़ी लो थी, वो लेबर वर्क पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे और उस वजह से मॉडर्न फॉरेन कंपनीज़ और प्राइवेट कंपनीज़ जो मार्केट में आई उनके साथ ये हमारी इंडिया की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री वो कॉम्पीट नहीं कर पाए और धीरे धीरे उनके बिजनेस बंद हो गए एंड दैट क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर लॉट्स ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रियल वर्कर्स, आर्टिशंस, क्राफ्टमैन, है ना, दोज हु आर लिविंग इन अ रूरल एरिया। और इन सभी की वजह से स्लोली ग्रेजुअली रूरल एरियाज से सिटी की ओर माइग्रेशन बढ़ने लगा एंड दैट क्रिएटेड द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी सीवियर इन अ रूरल एरियाज। Poor people are becoming victim of malnutrition and diseases. As they are poor, they are not getting proper food for at least 2 times in a day. अगर उन्हें फूड मिलता भी है तो उनके फूड में जो नॉर्मल बैलेंस डाइट के जो रिक्वायरमेंट्स है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स, है ना, ये सभी को सेटिस्फाई करने वाले प्रॉपर फूड्स नहीं होते and they suffers from the problem of malnutrition and they becomes easy victim of any disease. Expenditure on health increased although the income was static, but the expenditure on medicine increased. इनकम कम है पर डे बाय डे मॉडर्नाइजेशन की वजह से हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। जैसे कि आपके और मेरे घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए
है ना, और हमारे पास इंश्योरेंस कवर ना हो, तो घर में फाइनेंशियल कंडीशन ना होने के बावजूद भी लोग अपने फैमिली मेम्बर को बचाने के लिए अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी से बाहर जाकर भी खर्चा कर देते हैं। और कभी कभी कुछ लोगों का ये बीमारी में हॉस्पिटल्स के खर्चे भरने में घर बार सब बिक जाता है। आपने फ़िलहाल चल रही कोविड की सिचुएशन में बहुत से एग्जाम्पल ऐसे शायद देखे होंगे। सो दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम, है ना, फॉर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज फॉर द पुअर मोर। गरीब आदमी एक तो पेट भरने के लिए पैसा नहीं होता, और बीमार पड़ने पर हॉस्पिटल और मेडिसिन के खर्चे इतने हो जाते हैं कि वो और गरीबी के बोझ में दब जाता है। Due to change in technology, traditional business, cottage industries, etc. were deteriorated and unemployment had increased. जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, स्टूडेंट्स कहाँ पे डेवलपमेंट हुआ? टेक्नोलॉजिकल फील्ड में। आज ज़्यादातर बिजनेस मॉडर्न मशीनरीज के थ्रू ऑपरेट होते हैं। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, उसके पीछे बिजनेसमैन का ये पर्पज़ होता है कि वो कम से कम कॉस्ट में प्रोड्यूस हो जाए, एंड फॉर दैट द मशीन्स आर द बेस्ट ऑप्शंस। तो मॉडर्न बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड मशीनरीज का इस्तेमाल होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे प्रोड्यूस चीप गुड्स एंड द प्रोडक्शन ऑल्सो रिमेन्स वेरी हाई। और उसके कंपैरिजन में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है ना, ट्रेडिशनल बिजनेस है, जो आर्टिशंस और क्राफ्टमैन्स चलाते थे, वो सब के गुड्स ये एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू बने हुए गुड्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव होते हैं, और उस वजह से उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में डे बाय डे कम हो जाती है और धीरे धीरे उनके बिजनेस बंद होने लगे, एंड दैट क्रिएटेड द प्रॉब्लम फॉर द ट्रेडिशनल बिजनेस एंड कॉटेज इंडस्ट्री। There was an increase in population growth, death rate decreased, average lifespan increased, supply of labor is increased in comparison of demand of labor, so the unemployment is also rising. इंडिया की जितनी भी मेजॉरिटीली प्रॉब्लम है, चाहे वो इकोनॉमिक हो या सोशल हो, हर एक के पीछे एक मेन रीज़न है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इन इंडिया द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑन एनुअल बेसिस, है ना, ईयरली बेसिस पे इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ है अराउंड 2% पर एनम। दैट मीन्स एवरी ईयर अराउंड 2 करोड़ पॉपुलेशन गेट्स एडेड इनटू द आवर एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। हर साल 2 करोड़ लोग हमारी पॉपुलेशन में ऐड होते हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटी, हॉस्पिटल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज़, डेथ रेट पहले के मुकाबले डे बाय डे कम हो रहे हैं, एंड द बर्थ रेट इज़ राइजिंग। सेकेंड थिंग, एवरेज लाइफ स्पैन हैज़ इंक्रीज। एवरेज लाइफ जो पहले 50-55 ईयर्स थी, एवरेज, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज, और वो आज 68 ईयर्स है। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की वजह से मार्केट में लेबर की सप्लाई बहुत ज़रूरत से ज़्यादा है, और उस वजह से हर एक लोगों को काम नहीं मिल पाता। दे रिमेन्स अनएम्प्लॉयड, एंड अल्टीमेटली द अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। ऑन द अदर साइड, द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट डिक्रीज्ड, देयर वाज अ प्राइस राइज। आज जितने भी मॉडर्न बिजनेसमैन है ना, दे आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम, जो हमने चैप्टर 16 में पढ़ा कि मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम में जो बिजनेस हाउसेस होते हैं उनका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट, एंड दैट्स वाई दे गिव कंसंट्रेशन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ लग्जरियस गुड्स लाइक टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार्स, है ना, ऑटोमोबाइल्स। उनके प्रोडक्शन पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि उसमें प्रॉफिट हाई होता है। एट द सेम टाइम दे निग्लेक्ट्स द प्रोडक्शंस ऑफ नेसेसरी थिंग्स, एंड एज द प्रोडक्शन इज लो, there will be shortage of necessary goods in the market, and that will lead to price rise। और जब आम ज़रूरतों के चीज़ों के प्राइस बढ़ते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव गरीब आदमी के जीवन पे ही पड़ता है।
Downfall in purchase power was experienced, living standard deteriorated, इनकम कम हो रही है या जितनी स्पीड से खर्चे बढ़ रहे हैं उतनी स्पीड से इनकम नहीं बढ़ रही, and because of that the living standard of the middle class, lower income earner, poor family is going down day by day. And because of all the above reason, in Indian economy, especially in a rural area, the poverty is increasing day by day. So these were the various reasons, causes for enhancing poverty in Indian society. I hope it will be helpful to you. Keep on revising, keep on learning. If you have any doubt, you can contact me. Goodbye. Take care, students.